Okay, so hello my dear friends, guys, welcome back to Educate India, and this is our day number 2 of the series. Okay, so without wasting much of our time, as you all know, I am Darpan Srivastav, and this is our second day of 2nd November. Okay, so without wasting much of our time, directly let us begin to our video and let us learn total 150 top questions, okay, which are based on PYQ and which can come in an exam. It is expected, okay, and with 100% guarantee. All right, so let us begin it. Who was the founder of Indian National Congress, INC? AOUM. Khilafat movement was started to protest against the humiliation of Turkish Khalifa. Okay, खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ था किसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए? सो द ह्यूमिलिएशन ऑफ द तुर्किश खलीफा के अगेंस्ट खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ था. ओके, सो द रीजन बिहाइंड दिस द नेम. ओके, इन 1916 INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग साइन अ पैक्ट इन लखनऊ. ओके, लाला लाजपत राय वाज प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट होम when he became a victim of police brutality. So Lala Lajpat Rai was protesting against Simon Commission. Okay, Pune Agreement was signed between Mahatma Gandhi and Dr. B.R. Ambedkar. Okay, Home Rule was established during World War II. Okay, I mean World War I. Yeah, first on the World War first Home Rule began. Okay, so do not be confused in it. Muslim League was founded in which year? So Muslim League was founded in 1906. Okay, who was the founder of Servant of India Society? So G.K. Gokhale was the founder of Servant of India Society. Okay, the High Court of Kolkata, Madras and Bombay came into existence during the tenure of which viceroy? Guys, आप क्वेश्चन देख सकते हो. क्वेश्चन किस टाइप का आ रहा है, कैसे घुमा करके क्वेश्चन पूछ रहा है, लाइक बच्चे का माइंड ही घूम जाए डायरेक्टली. ओके, सो क्वेश्चन है द हाई कोर्ट ऑफ कोलकाता, मद्रास एंड बॉम्बे केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ व्हिच वाइसरॉय? सो ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड कैनिंग. ओके, हु वाज बाल गंगाधर तिलक कॉल्ड हिज पॉलिटिकल गुरु? सो बाल गंगाधर तिलक political guru is Swami Vivekanand. Okay, when was the Gandhiji-Irwin agreement signed? So on 5 March 1931 Gandhiji signed his Irwin agreement. All right, Gandhiji was influenced by whose writings? So here a person name given who influenced Gandhiji very much, okay, by his writing. So the name is लियो टॉल्स्टॉय. ओके, गांधी जी पर्सनली इनसे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गए थे, इनकी लिखावट, इनकी राइटिंग से. ओके, सो किसके राइटिंग से? लियो टॉल्स्टॉय की राइटिंग से. ओके, हु कॉइन्ड द टर्म सत्याग्रह? ऑफ कोर्स महात्मा गांधी. हु वेंट टू मीट गांधी जी इन साउथ अफ्रीका? गांधी जी से साउथ अफ्रीका मिलने कौन गए थे? सो गोपाल कृष्णा गोखले गए थे. ओके, डू नॉट बी कंफ्यूज हिज नेम. ओके, द ओनली सेशन ऑफ कांग्रेस headed by Gandhiji was Belgaum session. Okay, in 1939 Subhash Chandra Bose was elected president of the Congress party by defeating, किसको हरा करके वो कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट बने थे? सो पट्टाभी सीतारमैया. ओके, पट्टाभी सीतारमैया को हरा करके ये कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट बने थे. और कब बने थे? 1939 में बने थे. कौन बने थे? तो सुभाष चंद्र बोस जी बने थे. ओके, सो डू नॉट बी कंफ्यूज. ओके, क्विट इंडिया मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन ऑफ कोर्स इन अगस्त 1942. ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है पूछने वाला. किसने स्टार्ट किया? महात्मा गांधी ने किया. कब किया? अगस्त में किया, 1942 ईयर में किया. और क्या स्लोगन दिया? ऑफ कोर्स डू और डाई का स्लोगन दिया. ओके, But if you want to learn in detail, so go and check my playlist. You will get a video. Okay, where was the parallel government formed during the Quit India movement? बालिया. ओके, बालिया नाम था वो उस पैरेलल गवर्नमेंट जो कि फॉर्म हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम. ओके, बालिया नाम था उसका. गांधी adjourned after the Chauri Chauri scandal, non-cooperation movement. Okay,
What were the three main forms of satyagraha? Guys, this is very important for exam point of view, okay? So the three main forms of satyagraha is non-cooperation, civil disobedience and boycott, okay? These all three very much important for exam point of view, okay? क्योंकि इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है, स्पेशली सिविल डिसोबीडियंस और नॉन कोऑपरेशन में तो होती ही है, ओके? बॉयकॉट इज लाइक attack. In which year salt satyagraha was started? Of course in 1930, okay? In which session of the Indian National Congress Purna Swaraj was announced? So in Lahore session, okay? Who was the first president of independent India? Of course, G.V. Mavlankar. How can you forget them? Who was the founder of the concept of Sarvodaya? Of course, Mahatma Gandhi. Who founded the Banaras Hindu University? Okay, it is very important question. Okay, BHU को किसने फाउंड किया? So मदन मोहन मालवीय जी ने फाउंड किया. Okay, भीमबेटका केव इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ऑफ कोर्स इन मध्य प्रदेश. ओके गाइस, भीमबेटका केव मध्य प्रदेश में लोकेटेड है. ओके, डू नॉट बी कंफ्यूज. मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में ना बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं. ओके, क्योंकि अजंता केव भी महाराष्ट्र में है. ओके, एलोरा केव भी महाराष्ट्र में है. उन्हें लगता है कि भीमबेटका केव भी महाराष्ट्र. नो यार, मध्य प्रदेश. ओके, दोनों MM नाम है ना, इसलिए कंफ्यूजन हो जाता है क्रिएट माइंड में. Which are the port cities of Indus Valley Civilization? Lothal, okay? Satyamev Jayati engraved on Indian emblem is taken from Mundakopanishad, okay? Mundakopanishad से ये लिया गया है सत्यमेव जयती. okay? Which marriage was not considered legal in ancient India? कौन सा ऐसी मैरिज है जो कि लीगली इंडिया में कंसीडर नहीं की जाती? सो गंधर्व मैरिज. ओके, अब गंधर्व मैरिज क्या होती है? गो एंड चेक इट आउट. ओके, बुद्ध वॉज रिलेटेड टू विच डायनेस्टी? ऑफ कोर्स साक्य डायनेस्टी. ओके, वेयर डिड बुद्धा गिव हिज फर्स्ट सरमन? बुद्धा ने अपना फर्स्ट सरमन कहाँ दिया था गौतम बुद्ध जी ने? सो उन्होंने सारनाथ में दिया था. ओके, coins made of metal first appeared in the time of बुद्ध. ओके, गौतम बुद्ध के टाइम पे कॉइन्स जो है वो मेटल के बनने स्टार्ट हुए थे फर्स्ट टाइम. ओके, सो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि कहाँ पे स्टार्ट हुए थे, कैसे हुए थे. गौतम बुद्ध के टाइम पे हुए थे. ओके, इसमें गाइस और साथ में एक और है जिसमें बहुत कंफ्यूजन होती है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम आयरन का यूज होता था या फिर नहीं. सो नो, आयरन इज नॉट इन द यूज ऑफ दैट टाइम. ओके, उस टाइम आयरन यूज में नहीं था. आयरन यूज में कब आया? वैदिक काल में. ओके, जैसे जैसे वैदिक पीरियड स्टार्ट हुआ देन आयरन केम इनटू अफेक्ट ऑन. ओके, केम इनटू यूज. नेम द किंगडम दैट फर्स्ट यूज एलिफेंट्स इन वॉर? मगध. ओके, मगध ने पहली बार एलिफेंट को अपने वॉर में मतलब युद्ध में यूज किया, इस्तेमाल किया. ओके, इन विच ईयर कलिंगा वॉर टुक प्लेस? ऑफ कोर्स इन 261 BC. ओके, What was the name of the ambassador of Greece in the Maurya court? Megasthenes. Okay, मौर्य कोर्ट में एक एम्बेसडर ऑफ ग्रीस से एक एम्बेसडर आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, जिनका नाम था मेगास्थनीज. हाँ, ये वही मेगास्थनीज है जिन्होंने इंडिका की बुक लिखी है. हाँ, ये वही मेगास्थनीज है जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को सजेशन दिया था. क्या सजेस्ट किया था? गो एंड चेक इट माई प्लेलिस्ट. ओके, आई हैव एक्सप्लेन द गिव अ डिस्कशन. ओके, मैंने काफी अच्छा उसमें एक्सप्लेन किया. सो गो एंड चेक इट आउट. मौर्य एम्पायर में. ओके, Ashoka adopted Buddhism by being influenced by which Buddhist monk? उपगुप्त. ओके, अशोका ने बुद्धिज्म को अपनाया. कौन से बुद्धिस्ट मॉन्क को मतलब उनसे इन्फ्लुएंस होकर के? सो उपगुप्त से वो बहुत इन्फ्लुएंस हुए थे. ओके, अब वो आप उनकी स्टोरी पढ़ोगे ना, फिर आपको समझ में आया वो उनसे कैसे मिले, कैसे उनसे इन्फ्लुएंस हुए, क्या चीज उन्होंने मतलब ऐसे इन्फ्लुएंस की. ओके, सो कैसे हुआ वो? गो एंड चेक इट आउट द स्टोरी. ओके, एंड द डिटेल स्टोरी इज अवेलेबल ऑन माय चैनल, सो गो एंड चेक इट आउट. Which was the most famous center of education during Maurya period? Taxila. Okay, Taxila. Who wrote the अर्थशास्त्र? अर्थशास्त्र किसने लिखी है गाइस? कौटिल्य ने लिखी है अर्थशास्त्र. Okay, which art is also known as Greco-Buddhist art? Gandhara art. Okay, in which year was the first battle of Panipat fought? Of course in 1526. Okay,
इन ओके 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ, लेकिन किसके किसके बीच में हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ। कौन जीता कौन हारा? सो मैं लेट मी टेल यू, इब्राहिम लोदी वाज द लास्ट रूलर ऑफ लोदी डायनेस्टी। ओके, सो बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया एंड देन मुगल एम्पायर का एक तरह से वो इस्टेब्लिश हुआ। ओके, दिल्ली सल्तनत का। सो बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी ओके इन द बैटल ऑफ पानीपत। सो यहाँ से 3 to 4 क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं, सो डू नॉट बी कंफ्यूज इन इट। ओके, बाबर ने उनका कुछ यूज भी किया था, स्पेशल पावर्स उसने यूज किया था। सो गो एंड चेक इट आउट। गन पाउडर का यूज किया था बाबर ने उस टाइम ओके उन्हें हराने के लिए। सो गाइज अभी हमारे हो चुके हैं 10 मिनट्स कंप्लीट एंड अब मैं एंड करती हूँ अपने हिस्ट्री के क्वेश्चन का। अब गाइज स्टार्ट करती हूँ डायरेक्टली अपने नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है पॉलिटी। ओके, so without wasting much of time directly let us begin to our polity session. Okay, so guys शुरू करते हैं polity. Okay, polity 25 questions with explanation. Which schedule of the Indian Constitution provide for allocation of seats to the state and union territories in the Rajya Sabha? Of course in the 4th schedule. Okay guys, राज्य सभा की सीट एलोकेशन इन सब के बारे में 4th शेड्यूल में ही डिटेलिंग दी हुई है। सो ऑफ कोर्स इन 4th शेड्यूल, इसलिए मैं कहती हूँ शेड्यूल को लर्न करो। ओके, सारे शेड्यूल होते हैं, ओनली 12 है यार, याद कर लो क्या जा रहा है बताओ। मैंने त्रिकोण एक्सप्लेन किया अपने चैनल पे, सो गो एंड चेक इट आउट ना। व्हाई आर यू वेटिंग हियर? Okay, explanation. First of all, the 4th schedule specifies the number of Rajya Sabha seats allocated to each state and union territories. Okay. Next, which amendment to the Constitution added the words socialist, secular, and to the preamble? Okay. So of course, in 42 Amendment Act, which held on 1976. Okay. Known as the mini constitution, this amendment made several major changes including socialist, secular and integrity to the preamble. Okay, under which article of the Indian Constitution can the president proclaim a national emergency? So under article number 352. Okay, 352 denotes for national emergency. Okay, gives the president power to declare a national emergency on grounds of war, external aggression or armed rebellion. Okay, so guys ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है क्योंकि आर्टिकल नंबर 352 प्रेसिडेंट को ये पावर देता है कि वो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके, कभी भी। सो ये पावर ना प्रेसिडेंट को कौन से आर्टिकल में? सो आर्टिकल नंबर 352 में दी जाती है। ओके, Which article deals with the right to constitutional remedies? Of course, article number 32. अगर आपको ये नहीं पढ़ा, अगर आपको ये नहीं पता तो क्या पता लाइफ में? अपना नाम भी पता नहीं होना चाहिए आपको, इतना इजी है गाइस। Called the heart and soul of the Constitution by Dr. B.R. Ambedkar. Dr. B.R. Ambedkar ने आर्टिकल नंबर 32 को हार्ट एंड सोल का नाम दिया है। ओके, हार्ट एंड सोल। वो दिल से इस आर्टिकल को बहुत पसंद करते थे यार, सच में। Enables Supreme Court to issue rights protecting fundamental rights. Okay, means ये सुप्रीम कोर्ट को ये पावर प्रोवाइड है कि सुप्रीम कोर्ट कभी भी रिट्स जारी कर सकता है फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके, सो सुप्रीम कोर्ट कब कर सकता है? कौन से आर्टिकल के अंदर? सो आर्टिकल नंबर 32 के अंदर। ओके, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के नाम से बहुत फेमस है। Who appoints the Comptroller and Auditor General of India? CAG को कौन करता है अपॉइंट? ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेंगे अपॉइंट, और कौन कर सकता है उनके अलावा? अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन अपॉइंटमेंट इज मेड बाय द प्रेसिडेंट, रिमूवल प्रोसेस स्पेसिफाइड अंडर आर्टिकल 148 एक्सेट्रा। ओके, 148 में इनका रिमूवल प्रोसेस भी एक्सप्लेन किया है। सो आर्टिकल नंबर 148 को भी याद रखना। ओके, इम्पोर्टेंट है। Which article of the Indian Constitution deals with the establishment of a Council of Ministers with the Prime Minister as its head? Of course, article number 74 first. Okay, it states there shall be a Council of Ministers with the PM as its head to aid and advise the President. Okay, all right. So the next is in case of the death of the president and vice president. Guys, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से सुनना। ओके, सपोज करो अगर प्रेसिडेंट की और वाइस प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है। ओके, जस्ट ओनली इमेजिन, सपोज। ओके,
हु एक्ट एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो उस टाइम इमरजेंसी में अगर सपोज करो प्रेसिडेंट की और वाइस प्रेसिडेंट दोनों की डेथ हो गई, एक साथ हो गई, एक्सीडेंट हो गया, डेथ हो गई, ओके। सो उस टाइम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया का जो भी काम है वो कौन संभालेगा? हु विल एक्ट एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो उस टाइम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये राइट मिला है कि उस टाइम उस इमरजेंसी सिचुएशन में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का काम करेंगे, ओके। एज अ प्रेसिडेंट वो सब कुछ हैंडल कर सकते हैं, ओके। सो ये CJI को मिला हुआ है, ओके। सो इफ बोथ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट आर वैकेंट देन द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक्ट्स एज अ प्रेसिडेंट टेम्पररी, ओके। टेम्पररी वो काम कर सकते हैं, नॉट फॉर परमानेंट, ओके। Which article of the Constitution deals with the abolition of untouchability? Of course, article number 17 deals with it, okay? And article number 18, guys 17 की बात हो रही है, so 18 को भी include कर लो ना यार, क्या जा रहा है? Okay, article number 18 deals with what? Abolition of titles, okay? कौन से टाइटल यार मैंने एक्सप्लेन किया है, जाकर के देखो, go and check it out. Okay, article number 17 explicitly states that untouchability is abolished and its practice in any form is forbidden under state law, okay. Which constitutional amendment reduced the voting age from 21 to 18 years? कौन से ऐसे constitutional amendment act में voting age reduce हो गया 21 से 18? कब हुआ? Okay, मैं पहले ये बता दूं, 1988 में हुआ। कौन से एक्ट के थ्रू हुआ? 61st अमेंडमेंट एक्ट में हुआ, ओके। This amendment changed articles relating to qualifications for Lok Sabha and state assemblies, okay. Which schedule lists the fundamental duties of Indian citizens? Okay, not a schedule. There are in article number 51A, part 4A, okay. Always remember, fundamental duties article number 51A and part number 4A में define है, all right. So, the next one is, what is the tenure of the chairman of a state public service commission? Okay, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन है उनका टेन्योर क्या है? सो 6 years और एज उनकी कितनी होनी चाहिए? सो वो 62 होनी चाहिए, ओके, विच एवर इज अर्लियर, ओके। ऑलराइट, विच बॉडी रिकमेंड्स द डिवीजन ऑफ टैक्सेस बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट? ऑफ कोर्स फाइनेंस कमीशन, ओके। Under Article 280, this body is constituted every 5 years to recommend fiscal transfers and allocations of resources, okay? Alright. How many state and union territories are covered under the 8th schedule of the Constitution? Of course, official languages we are talking about, okay? Total 22 language, okay? In the starting, was 14, but now it is 22, okay? The 8th schedule lists official language recognized by the Constitution. Next question. Which article empowers the president to dissolve the Lok Sabha? So article number 85 1B, okay, empowers the president to dissolve the Lok Sabha, okay. Okay, so the president may dissolve Lok Sabha on the advice of Council of Ministers headed by PM. Only Council of Ministers जो कि PM के अंदर में है, उन्हीं के एडवाइस पर प्रेसिडेंट लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं, ओके। विदाउट उनके एडवाइस पर नहीं कर सकते, ऑलराइट। और ये कौन सा आर्टिकल में गिवन है? सो आर्टिकल नंबर 85 1B में गिवन है, ओके। Which article deals with DPSP या डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी? पर्सनली मुझे बहुत पसंद है ये वाला, ओके गाइज। मैं अगर पर्सनली बताऊं ना, जैसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल कहा था, आर्टिकल नंबर 32 जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, अगर मुझे मौका मिले ना तो मैं हार्ट एंड सोल का टाइटल इसे भी दूं, ओके। क्योंकि DPSP इतना मुझे पसंद है ना, आई कांट बी एबल टू एक्सप्रेस, ओके। एंड मैंने DPSP के ऊपर एक अलग वीडियो भी बना के रखी है, सो गो एंड चेक इट आउट, ओके। ब्राउज माय वीडियो, स्क्रॉल इट, देन यू विल एबल टू गेट इट, ओके। बाय द वे, आर्टिकल नंबर 36 से 51 के बीच में है, पार्ट नंबर 4 में गिवन है DPSP, ओके। DPSP like fundamental duties, yeah, but both are different, but I personally like DPSP more than fundamental duties, okay. Which because guys देखो, fundamental duties is like a kind of responsibility, okay, so we personally understand it, but I like personally DPSP more, okay, fundamental rights से भी ज्यादा।
Okay, what kind of government is established by the constitution? Parliament form of government. Okay, parliamentary form of government. Okay, by the way, let me tell you that DPSP are non-justiciable guidelines for governance. Okay, this is non-justiciable. All right. Okay. Yeah. What kind of government is established by the Indian Constitution? So parliamentary form of government, as I have explained, tell you, okay, already. Executive. PM and Council of Ministers is responsible to the legislature, Lok Sabha, okay. Which amendment introduced the Panchayati Raj system in the Constitution? Of course, 73rd Amendment, which has happened in 1992, okay. Added 9th part Panchayats and provided for rural local self-governance, okay. Which article provides for the abolition of titles like Raja, Maharaja, etc. Of course, article number 18 अभी तो guys मैंने just explain किया, okay. Prevents state from covering titles, only award of honor allowed subject to certain rules. जब भी आप जैसे आपको कोई अवार्ड मिला आपके ऑनर आपके टैलेंट की बिहाफ पे, सो ओनली वो टाइटल्स आप रख सकते हो, लेकिन राजा महाराजा नॉट अलाउड ना यार, ओके. Who was the first speaker of Lok Sabha? GV Mavlankar, of course. हमने हिस्ट्री में भी मैंने आपको बताया, okay. He was elected as speaker in 1952 as a first Lok Sabha speaker, okay. Which article provided that the executive power of a state shall be vested in the governor? Of course, article number 154 provide, okay. Establish that governor is nominal executive head. Real power lies with elected government, okay. Which article was subject is amendment of the constitution? So article number 368, okay, empowers parliament to amend the constitution and lays down procedures. Guys, आप समझ रहे हो मैं इतना फास्ट क्यों बोल रही हूँ? Because we have lack of time and we need to complete a specific point of questions, okay. That is why. Who is the ex officio chairman of the Rajya Sabha? So ex officio chairman of the Rajya Sabha कौन होते हैं? Of course, vice president of India को ही राज्य सभा का chairman कहा जाता है, ओके. द वीपी ऑफ इंडिया ऑटोमेटिकली बिकम्स चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एज पर आर्टिकल नंबर 63 और 64 के अंदर में ये लिखा गया है कि वीपी यानी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही राज्यसभा के चेयरमैन ऑटोमेटिकली बन जाते हैं, ओके. Which article deals with the right of a citizen to move the Supreme Court for enforcement of fundamental rights? Okay, article number 32, okay. This entrusts the Supreme Court with power to issue the writs as such as, okay, जैसे कि मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट को पावर मिलती है कि वो रिट्स इशू करे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, ओके. कौन से आर्टिकल के अंदर? 32 के अंदर. Which schedule of the constitution deals with the allocation of seat in the सभा राज्यसभा? अभी तो कैसे बात की थी 4th शेड्यूल, लगता है दोबारा रिपीट हो गया क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम. Which constitutional body monitors elections in India? Of course, Election Commission of India under Article number 324, responsible for superintendence, direction and control of elections of to the Parliament and the state legislatures. Okay. So guys, यहाँ पर हमारे कंप्लीट होते हैं पॉलिटी के टोटल 25 क्वेश्चन. अब गाइस हम स्टार्ट करने वाले हैं ज्योग्राफी के. So without wasting much of our time, directly let us begin to our video and let us learn now geography. ओके सो गाइस, यहाँ पर आपके साथ हो चुकी है पॉलिटी की स्पेशल क्वेश्चन वो 25 जो कि मैंने खुद पर्सनली डिजाइन किया है बिकॉज आई एम अ कंटेंट क्रिएटर आल्सो, ओके. सो द टॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स? सो गाइस, टॉपिक ऑफ कैंसर टोटल 8 इंडियन स्टेट से पास होता है, ओके. ऑलराइट, 25.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड. गाइस डिग्री बता रही हूँ यार मैं, ओके. पासेस थ्रू 8 इंडियन स्टेट्स. कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान. गाइस सीरीज अगर आपको याद नहीं है ना तो फिर बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी क्योंकि एग्जाम में कभी भी कुछ भी आ सकता है, ओके. गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ओके. गाइस इस सीरीज को आप ऐसे याद करो जैसे कि ABCD और 1 2 3 4 काउंटिंग है, ओके. दिस इज अमॉन्ग द मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस इन our SSC exams, okay. Which is the largest river island in the world? Of course, Majuli. Majuli is the world largest river island situated on the Brahmaputra river. अच्छा, एक और चीज है इसके बारे में, ओके.
डिक्लेयर्ड अ डिस्ट्रिक्ट। गाइस मजूली एक डिस्ट्रिक्ट भी बन चुका है। कब डिक्लेयर किया गया उसको एज ए डिस्ट्रिक्ट? सो वो 2016 में किया गया। ओके, एंड एसएससी लव दिस टाइप ऑफ स्टैटिक जीके। ओके, एंड आई ऑल्सो पर्सनली लव दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस टू लर्न, टू टेल। आई रियली लाइक इट। ओके, एंड पीपल लाइक इट, दैट इज व्हाई एसएससी गिव इट। ओके, एसएससी वही क्वेश्चन एग्जाम में देता है जो बच्चों को पसंद होता है। ओके, पर्सनली द वेस्टर्न घाट्स आर ऑल्सो नोन एज, वेस्टर्न घाट को और क्या कहा जाता है? इसका गाइस मैं आपको ऑप्शन बताना चाहूंगी। ओके, सह्याद्रीस, अरावलीज, विंध्याज, सतपुत्रा। इसका गाइस आंसर मुझे आप दोगे, लेकिन आपके देने से पहले मैं चाहती हूँ कि मैं आंसर दे दूं। आप इतना कष्ट क्यों करोगे? ओके, सह्याद्रीस कहा जाता है। ओके, दे रन पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट फ्रॉम गुजरात टू केरला। ओके, नेक्स्ट, रिंग ऑफ फायर इज एसोसिएटेड विद विच एक्टिविटी? गाइस रिंग ऑफ फायर is associated, okay, first of all it is a Pacific Ocean. Okay, it is associated with the Pacific Ocean, the tectonically active region with 75% of the world volcano and the earthquakes. Okay, so it deals with earthquake and volcano. Very important for exam point of view, बहुत बार पूछा है, इनफैक्ट सीजीएल के tier 1 में भी पूछ चुका है। okay? कि रिंग ऑफ फायर किसे कहा जाता है? सो अर्थक्वेक एंड वोल्केनो को। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, फॉर ऑल ऑफ द एग्जाम्स। द हाईएस्ट पीक इन साउथ इंडिया इज, साउथ इंडिया के हाईएस्ट पीक का नाम क्या है? ऑफ कोर्स अनामुरी है। यहाँ से गाइस मैं 2 से 3 क्वेश्चन आपके लिए बताना चाहूंगी। अनामुरी, ओके, अनामुरी इतना तो आपको याद हो गया, लेकिन अगर ये पूछा एग्जाम में कि अनामुरी की एक्चुअल हाइट कितनी है, सो इसमें 100% में से गाइस देखो 75% बच्चों ने तो अनामुरी का आंसर दे दिया। ठीक है, कि चलो भाई उन्हें ये पता है कि साउथ का जो हाईएस्ट पीक है वो इंडिया का वो अनामुरी है, लेकिन अगर एग्जाम में ये पूछा उसकी एक्चुअल हाइट कितनी है, सो उसमें ओनली 25% बच्चों को ये आंसर नहीं पता होगा। ओनली 50% बच्चों को पता होगा कि हाँ ठीक है, उसकी जो एक्चुअल हाइट है ना वो 2695 मीटर है। सो ये ओनली 50% को पता होगा, बाकी की 50% बच्चे यहीं पर हट जाएंगे। ओके, वो स्किप कर देंगे इसे, और फिर अगर उन्होंने क्वेश्चन को स्किप किया तो उनका सिलेक्शन भी स्किप हो जाएगा। ओके, बचेंगे वो 50% बच्चे जिन्हें ये पता है कि उसकी एक्चुअल हाइट 2695 मीटर है। ओके, अब अगर एग्जाम में ये आ गया कि अनामुरी कौन से हिल्स पर लोकेटेड है, सो यहाँ पर 25% बच्चे और हट जाएंगे और बचेंगे ओनली 25% बच्चे जिन्हें इसका भी आंसर पता होगा। सो वो केरला में एक हिल है जहां पर लोकेटेड है। अब गाइस 25% बच्चे में से बाकी सारे 24 हट जाएंगे और ओनली 1% बच्चों को ये पता होगा कि वो केरला में जो हिल है उस हिल्स का नाम क्या है। सो वो है अनामुलाई हिल्स। ओके, सो इफ यू वांट टू बिकम द वन ऑफ द 25%, ओनली 1%, सो लर्न इट। ओके, इसे अच्छे से डिटेलिंग याद करो। जो भी चीज आपको मिले गो एंड सर्च एंड लर्न डिटेल। ओके, ताकि उसके आसपास जितने भी क्वेश्चन बन पाए ना, आप उन सारे क्वेश्चन का रिवीजन अच्छे से कर लोगे। ओके, इट इज द हाईएस्ट पीक इन साउथ इंडिया एंड द पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स। थोड़ा सा मैं और फास्ट चलने की कोशिश करूंगी। ओके, द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट 82.5 डिग्री ईस्ट। ओके, दिस लॉन्गिट्यूड पास इज थ्रू मिर्जापुर, ही मिर्जापुर से पास होता है, मिर्जापुर यानी उत्तर प्रदेश। ओके, एंड इज द रेफरेंस लाइन फॉर आईएसटी। आईएसटी का फुल फॉर्म जानते हो यार, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये पूछने वाली कोई बात नहीं है, वैसे एग्जाम में एग्जामिनर पूछता है ऐसे भी क्वेश्चन। ओके, फालतू के क्वेश्चन पूछता है। विच इज यूटीसी प्लस 5.30। ओके, ये टाइम गाइस याद रखना, यूटीसी का बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, विच रिवर इज नोन एज द सौर ऑफ बिहार। गाइस सौर ऑफ बिहार कोसी रिवर को कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन क्यों देता है एग्जामिनर? ओके, खैर चलो देता है तो आप लोगों के लिए तो अच्छा ही है। द मेजर पोर्शन ऑफ अर्थ एटमोस्फेयर इज मेड अप ऑफ कोर्स नाइट्रोजन। ओके, अर्थ का गाइस नाइट्रोजन ना, अर्थ पे टोटल 78% नाइट्रोजन है, 21% ओनली ऑक्सीजन है एंड ओनली 1% अदर गैस है। ये परसेंटेज अगर आपको याद है तो एसएससी का एग्जाम निकालने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ओके, काजीरंगा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर विच एनिमल? ऑफ कोर्स वन हॉर्न्ड राइनोसोरस के लिए बहुत फेमस है। और काजीरंगा है कहाँ? तो असम में है। ये भी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ओके, हेरिटेज साइट है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडिया? सो सतलज रिवर है जो कि इंडिया से ओरिजिनेट नहीं होती, क्योंकि ये होती है
लेक रक्षकताल से ओरिजिनेट, ओके, जो कि इंडिया में नहीं बल्कि तिब्बत में है। तिब्बत कहाँ है? तो वो चाइना में है, ओके। विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन पेनिनसुलर रिवर, ऑफ कोर्स गोदावरी, जिसे दक्षिण का गंगा कहा गया है, ओके। लॉन्गेस्ट इन पेनिनसुलर रिवर, ओके, वेरी लॉन्गेस्ट। सो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ENSO? गाइस, ENSO का फुल फॉर्म क्या है? सो ENSO का फुल फॉर्म है EI नीनो साउदर्न ऑस्किलेशन, ओके। इट इज ए क्लाइमेटिक पैटर्न। ये मत समझना कि ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया, क्या पूछ लिया मैम ने, ओके। सो ये क्लाइमेटिक पैटर्न है, ओके। EI नीनो मीन्स वार्मिंग ऑफ पैसिफिक सरफेस वाटर। ये सरफेस वाटर का कहते हैं ना वार्निंग अलार्म बटन, वही है ये EI नीनो, ओके। इन्फ्लुएंसिंग इंडियन मानसून, ये इंडियन मानसून को इन्फ्लुएंस करता है, अराइव ऑफ फ्रीक्वेंसी डिनोट करता है, ओके। द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक इन इंडिया एज इज चिलिका लेक, ओके, विच इज लोकेटेड इन द ओडिशा एंड ये एक रामसार साइट भी है, ओके। विच रिवर इज कॉल्ड दक्षिण गंगा? ऑफ कोर्स गोदावरी, अभी तो मैंने बात की यार, ओके। माउजिनरम इज फेमस फॉर व्हाट? हाईएस्ट रेनफॉल के लिए माउजिनरम बहुत फेमस है, ओके। मेघालय में है, होल्ड द रिकॉर्ड फॉर हाईएस्ट एवरेज एनुअल रेनफॉल इन द वर्ल्ड, ओके। इंडिया का लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक कौन सा है? चिलिका लेक, अभी हमने बात की यार, ओके। विच सॉइल इज बेस्ट फॉर कॉटन कल्टीवेशन? ऑफ कोर्स ब्लैक सॉइल, जिसे रेगुलर सॉइल भी कहा गया है, जो कि महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा फेमस है। महाराष्ट्र में नहीं बल्कि गुजरात में और मध्य प्रदेश में भी इसके बहुत चर्चे हैं। रिच इन क्ले एंड मॉइस्चर रिटेनिंग कैपेसिटी, ओके, इसे मॉइस्चर रिटेनिंग कैपेसिटी भी कहा गया है। Which state has the longest coastline in India? So गुजरात has the longest coastline. कितना coastline है? कितना किलोमीटर का? 1600 किलोमीटर का coastline गुजरात के पास है, ओके। The main river in the South Sundarbans Delta is Hooghly, okay, a distributor of the Ganga in West Bengal. Through it is the world largest delta exists, Hooghly, okay. डोब रेफर्स टू, गाइस डोब का मतलब क्या होता है? सो गाइस डोआब का मतलब होता है मीटिंग प्लेस ऑफ टू रिवर। जब दो नदियां आपस में मिलती हैं सो उसके मिलन को डोआब कहा जाता है, ओके। कॉमन इन इंडो जेनेटिक प्लेन्स में बहुत कॉमन है, लाइक गंगा यमुना डोआब इन यूपी, ओके। सो दिस इज द एग्जांपल जस्ट। द हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड इज ऑफ कोर्स टिबेटन प्लेट्यू। टिबेटन प्लेट्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके, क्योंकि वर्ल्ड का हाईएस्ट प्लेट्यू है, जिसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बनेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, पीवाईक्यू में बहुत बार पूछा है यार। विच रिवर फ्लोज थ्रू द साइलेंट वैली? कुंथी रिवर, ओके। कुंथी रिवर फ्लो करती है साइलेंट वैली से। साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरला में है। कुंथी रिवर फ्लो थ्रू इट, ओके, फ्लोज थ्रू इट। व्हाट इज पार्क स्ट्रेट? ओके, स्ट्रेट बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, ओके। गाइस पार्क स्ट्रेट किसके बीच में है? सो वो इंडिया और श्रीलंका के बीच में है पार्क स्ट्रेट, ओके। बे ऑफ बंगाल एंड गल्फ ऑफ मन्नार, ओके। जुगुरा, ओके। जादू गुद्दा माइंस आर फेमस फॉर यूरेनियम। यूरेनियम के लिए बहुत फेमस है, ओके, जो कि झारखंड में लोकेटेड है। प्राइमरी यूरेनियम मीन्स माइनिंग साइट ऑफ इंडिया है ये, ओके। द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया इज NH44। गाइज वो गाना है ना कश्मीर टू मैं कन्याकुमारी, उसी गाने से ये इंस्पायर है, ओके, ये क्वेश्चन, ओके। NH44 वो है नेशनल इंडिया का हाईवे है, लॉन्गेस्ट हाईवे, जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है। अराउंड 3800 किलोमीटर लंबा हाईवे है ये, ओके। सो गाइज यहाँ पर हमारे कंप्लीट होते हैं ज्योग्राफी के क्वेश्चन। गाइज मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि है साइंस। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ आवर टाइम डायरेक्टली लेट अस बिगिन टू साइंस। ओके, सो गाइज अब गाइज शुरुआत हो चुकी है जनरल साइंस की, वो भी मेरे स्पेशल 25 और विद एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन के साथ। सो व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स? न्यूटन। न्यूटन इज द ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स, ओके। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, ओके। ये इसका न्यूटन का फॉर्मूला है, और अगर बात की जाए इसकी ऐसा यूनिट की, सो वो न्यूटन है, ओके। सो गाइज ये जो फॉर्मूला है ना ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स का, ये जो न्यूटन है इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। विच विटामिन इज कॉल्ड द सनशाइन विटामिन? गाइज विटामिन डी से सनलाइट मिलती है, सबको जानता है। सो सनशाइन विटामिन विटामिन डी में बहुत फेमस है, ओके। एंड हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, पर्सनली हमारी स्किन के लिए, बॉडी की जो स्किन होती है ना त्वचा, उसके लिए बहुत फेमस है, ओके। इट हेल्प्स इन कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए बहुत हेल्प करता है, ओके। सो
The next one is which gas is most abundant in Earth atmosphere? So nitrogen constitute about 78% of Earth atmosphere. जैसे कि मैंने बताया कि परसेंटेज गैस बहुत इंपॉर्टेंट है. 78% अर्थ एटमोस्फेयर पे नाइट्रोजन कंस्टिट्यूट करता है अकेला. ओके, एंड 21% के अराउंड आपको ऑक्सीजन है, और वो 1% जो बचता है वो अदर गैसेज है. ओके, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पॉइंट ऑफ व्यू. ऑल राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ फिजिकल चेंज? गाइस फिजिकल चेंज इसमें ऑप्शन गिवन है, मैं ऑप्शन का नाम बताती हूँ. बर्निंग ऑफ पेपर, रस्टिंग ऑफ आयरन, मेल्टिंग ऑफ आइस, डाइजेशन ऑफ फूड. गाइस देखो, फूड का डाइजेशन वो हमारा बायोलॉजी प्रोसेस है. ओके, burning of paper is not called a physical change. Rusting of iron is not called a physical change, क्योंकि ये लंबा प्रोसेस है. गाइस देखो, burning of paper it is just a process. ओके गाइस देखो, लेट मी टेल यू, फिजिकल चेंज वो होते हैं जिस चेंज को हम वापस रिपीट कर सकते हैं. लाइक मेल्टिंग ऑफ आइस इज अ फिजिकल चेंज. अगर हम आइस को मेल्ट कर सकते हैं तो हम दोबारा उसी मेल्ट आइस को वापस आइस भी बना सकते हैं. सो देखो गाइस, केमिकल चेंज वो होते हैं जिसे हम दोबारा रिपीट नहीं कर सकते. लाइक खाना अगर एक बार खराब हो गया तो उस खराब खाने को हम दोबारा सही नहीं कर सकते, तो वो हो गया केमिकल चेंज. लेकिन अगर मैं बात करूं फिजिकल चेंज की, तो वो होता है जिस चीज को हम दोबारा रिपीट कर सकते हैं. लाइक दिस इज अ टाइप ऑफ केमिकल कंपोजिशन विच कैन रिपीट अगेन. ओके, लाइक अगर 1 से हम 2 बना रहे हैं तो 2 से 1 भी बन सकता है. यू कैन अंडरस्टैंड. ओके, जो समझदार बच्चे हैं वो समझ जाएंगे. मेल्टिंग इज अ चेंज इन फिजिकल स्टेट विदाउट अ चेंज इन केमिकल कंपोजिशन. ओके, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, एंड इफ यू रियली वांट टू लर्न, तो मैंने एक्सप्लेन किया है अपने साइंस के वीडियो में, गो एंड चेक इट आउट. ओके, मेरे प्लेलिस्ट को चेक करो, मिल जाएगी वीडियो. Which part of the human body is affected by tetanus? Okay, tetanus से कौन सा बॉडी का पार्ट है जो कि अफेक्ट होता है? सो नर्वस सिस्टम tetanus को बहुत अफेक्ट करता है. ओके, आई मीन tetanus नर्वस सिस्टम को बहुत ज्यादा अफेक्ट कर देता है. इट इज कॉज्ड बाय क्लोस्ट्रीडियम टेटानी बैक्टीरिया. ये एक बैक्टीरिया का नाम है. अफेक्ट मसल एंड नर्व, ये मसल्स और नर्व्स को बहुत अफेक्ट करता है. ओके, इन शॉर्ट अपने नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है. विच मेटल इज इन लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? ओके, कौन सा मेटल है जो कि लिक्विड रहता है? इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. सो गाइस, ये तो गाइस सपोज जानते हैं मर्क्यूरी. मर्क्यूरी जो है Hg इज द ओनली मेटल लिक्विड एट रूम टेम्परेचर -38.83 डिग्री सेल्सियस टू 356.73 डिग्री मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है इसका. ओके, सो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो बच्चे CGL की 2 की तैयारी कर रहे हैं. ओके, क्योंकि उसमें ऐसी डिटेलिंग पूछता है एग्जाम में. ओके, हु डिस्कवर पेनिसिलिन? पेनिसिलिन को किसने डिस्कवर किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया. कब किया? 1928 में किया. ओके, कैसे किया और उसमें क्या डिस्कवर किया? सो फर्स्ट एंटीबायोटिक यूज्ड वाइडली इन मेडिसिन. ओके, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा? गाइस, वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या है? सो वो है Na2CO3. ओके, वॉशिंग सोडा इज इक्वल टू सोडियम कार्बोनेट यूज इन डिटर्जेंट इंडस्ट्री. ओके, जो कि हमारी मम्मियां रोज यूज करती हैं जब भी आप अपने कपड़े खराब करके आ जाते हो, सो उसको धुलने के लिए. ओके, द क्लोजेस्ट प्लेनेट टू द सन, मर्क्यूरी. ओके, मर्क्यूरी इज द क्लोजेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एंड हैज नो एटमोस्फियर. गाइस, मर्क्यूरी के बारे में ये 3 बातें हमेशा याद रखना. क्लोजेस्ट प्लेनेट टू द अर्थ. ओके, आई मीन सॉरी टू द सन. स्मॉलेस्ट प्लेनेट ऑल्सो. ओके, एंड हैज नो एटमोस्फेयर, इसमें कोई एटमोस्फेयर नहीं है. ओके, और सन के बहुत ही क्लोज और बहुत छोटा प्लेनेट है ये. ऑल राइट, विच ऑर्गन इज नोन एज द मास्टर ग्लैंड? कौन सा वो ऑर्गन है बॉडी का जिसे मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है? सो वो है पिट्यूटरी. ओके, पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल्स अदर ग्लैंड थ्रू हार्मोन्स. ओके, लोकेटेड एज द बेस ऑफ द ब्रेन. ओके, हमारे ब्रेन के जस्ट नीचे होता है जो कि कंट्रोल करता है हार्मोन्स के. ओके, अदर ग्लैंड्स के थ्रू. सो वो गाइस हार्मोन्स क्या होते हैं जो कि हमारे माइंड तक ना वो पावर पहुंचाते हैं कि कब हमारी लाइक सपोज करो मेरे हाथ से गलती से कोई भी गरम सामान टच हो गया, गरम कुकर है उसको मैंने टच कर लिया, सो अचानक से मेरे ब्रेन के पास एक सिग्नल पहुंचेगा कि हाँ मुझे क्या रिएक्ट करना है. ओके, सो उस रिएक्शन को, उस सिग्नल पहुंचने को, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं हार्मोन्स. आई मीन हार्मोन्स के थ्रू ही वो प्रोसेस हमारे माइंड में पहुंचता है. सो दैट इज वाई दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट. ओके, और पिट्यूटरी ग्लैंड के बिना तो वो होना पॉसिबल ही नहीं है. ओके, व्हाट डज डीएनए स्टैंड फॉर? सो डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीओक्सिरी
nucleic acid. Okay, DNA is the hereditary molecule in all living organisms. DNA तक सुना होगा, बहुत सारे टीवी शोज में दिखाते हैं आजकल, आपने देखा होगा, मैं नहीं देखती, मुझे पसंद नहीं है. Okay, which instrument measure atmospheric pressure? Barometer. Guys, barometer measure atmospheric pressure. Okay, invented by Torricelli. टॉरिसेल्ली ने बैरोमीटर को इन्वेंट किया था. ओके, मेजर प्रेशर इन, अच्छा ये बताओ किस में मेजर करता है. ओके, सो वो पैस्कल में करता है मेजर, और नहीं तो फिर mmHg में मेजर करता है. ओके, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. विच एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर? विनेगर में कौन सा एसिड होता है? प्रश्न गाइस, एसिटिक एसिड होता है. ओके, विनेगर कंटेन्स अबाउट 4 to 8% ऑफ एसिटिक एसिड. ओके, Which part of the eye controls the amount of light entering? So iris, eye का जो iris का जो पार्ट है, ओके, जो कि हमारे प्यूपिल के जस्ट हमारे उसके बैक साइड में होता है, उसी के साइज का होता है. ओके, सो इरिस एट जस्ट द साइज ऑफ द प्यूपिल टू कंट्रोल लाइट एंट्री. ओके, वो लाइट एंट्री को हमारी आंखों में एंट्री करने से प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है. ओके, ताकि जो लाइट है वो हमारी आंखों में एंट्री तो करे लेकिन ज्यादा अफेक्ट ना करे हमारी आंखों को. ओके, इसलिए Which vitamin deficiency causes night blindness? So विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी होती है. विटामिन ए इज एसेंशियल फॉर विजन. इट्स डेफिशिएंसी अफेक्ट लो लाइट वर्जन. सो गाइस, विटामिन के ऊपर मैं वीडियो बना दूंगी, अभी तक नहीं बनी है. आई नो नहीं बनी, इट्स माय फॉल्ट, आई एम सो सॉरी फॉर दिस कि मैंने भी वीडियो अपलोड नहीं किया. आई विल मेक अ वीडियो ऑन डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन, जिसमें मैं साइंस की वो सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगी जो बायोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, What is the common name of sodium carbonate? Guys, अभी तो मैंने बताया बेकिंग सोडा यार. ओके, अभी नहीं बताया था, अब बता रही हूँ. बेकिंग सोडा, NaHCO3 used in cooking and cleaning. ओके, the function of hemoglobin is to, okay, hemoglobin क्या कैरी करता है? So carry oxygen. ओके, hemoglobin in RBC, वो RBC cells में होता है, binds with oxygen and transport it to body tissues. ओके, Which gas is released when baking powder is heated? So carbon dioxide. Okay, baking powder contains sodium bicarbonate. Okay, release CO2 when heated. Okay, the energy of food we eat is measured in calories. जो भी हम एनर्जी ऑफ फूड खाते हैं, so वो कैलोरीज के थ्रू मेजर होता है. लाइक स्पेसिफिकली KCAL, किलो कैलोरीज इज इक्वल टू 1000 कैलोरीज. ओके, लाइक अगर मैं बात करूँ पिज्जा की, सो उसमें तो 600 के अराउंड कैलोरीज होती है, जो कि मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैं ज्यादा पिज्जा नहीं खाती. ओके, इट इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, दैट इज व्हाई. ओके, एंड आई एम वेरी हेल्थ कॉन्शियस. ऑलराइट, विच ऑर्गन प्रोड्यूसेज इंसुलिन? कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो कि इंसुलिन प्रोड्यूस करता है? सो पैनक्रियास करता है. ओके, और वैसे इंसुलिन का गाइस काम क्या है? सो इंसुलिन कंट्रोल्स ब्लड शुगर, वो ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है. लाइक अगर किसी का भी ब्लड शुगर बहुत ज्यादा अचानक से लेवल उसका हाई हो गया, सो उसे इंसुलिन की नीड पड़ जाती है इमरजेंसी में. ओके, इंसुलिन का यूज करते हैं ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए. सो प्रेसेस ग्लूकोज लेवल्स. ओके, वो ग्लूकोज के जो लेवल है उसको कंट्रोल में लेकर आता है. ओके, विच फेनोमेनन एक्सप्लेन्स द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार का जो फेनोमेनन है उसे क्या कहा गया है? सो वो जो एक्सप्लेन करता है उसे कहा गया है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. ओके, मींस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एक्सप्लेन्स द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार. गाइस, ये मैंने एक्सप्लेन किया है अपने उस प्रिज्म के वीडियो में, जो कि आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं, जो कि 5 मिनट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, जहां पर मैंने बिल्कुल डिटेलिंग एक्सप्लेनेशन दी है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार और वो प्रिज्म के कलर्स, 7 कलर्स के ऊपर, जो कि रेनबो में आपको दिखाई देते हैं. ओके, सो गो एंड चेक इट आउट. ओनली 5 मिनट्स की वीडियो है यार, जाओ जाकर के देख लो, इतना आलसपना मत दिखाओ. ओके, एग्जाम के लिए अच्छा नहीं होता. सो ड्यू टू कंटिन्यूअसली चेंजिंग डेंसिटीज ऑफ एयर लेयर्स इन एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है. ओके, विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज द यूनिवर्सल डोनर? यूनिवर्सल डोनर का गाइस जो ब्लड ग्रुप होता है वो क्या होता है? O नेगेटिव. ओके, O नेगेटिव कैन बी गिवन टू ऑल ब्लड ग्रुप्स. O नेगेटिव वो स्पेशल ब्लड ग्रुप होता है जो कि किसी भी ब्लड ग्रुप को हम दे सकते हैं O नेगेटिव ब्लड. ओके, क्योंकि वो यूनिक होता है, इसलिए आई होप कि मेरा वो स्किप दिस. ओके, प्लांट्स रेस्पायर थ्रू विच पाथ? स्टोमेटा. ओके, small pores on leaves allow gas exchange. Okay, what is the common name for sodium chloride and NaCl, so table salt?
What type of motion is shown by a pendulum? Oscillatory motion. Okay, pendulum swings to and fro about its mean position is in periodic oscillation. कैसे होता है? Like this. Okay, आपने पेंडुलम देखा होगा ना, वो जो स्कूल में, पुराने जमाने के स्कूल में ऐसे होता है पेंडुलम, लाइक दिस, छोड़ दो ऐसे वो मूव करते रहेंगे, तो दिस इज कॉल्ड। ओके, सो गाइज यहाँ पर हमारे साइंस कंप्लीट होते हैं। गाइज मैं ओनली 1 मिनट आपसे लेना चाहूंगी गाइज प्लीज, क्योंकि गाइज मैं ना कुछ कहना चाहती हूँ आपसे, ओके, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, सो आई रियली वांट टू स्पीक समथिंग टू यू, टू टेल समथिंग टू यू, एंड इट्स अ टाइप ऑफ रिक्वेस्ट। ओके गाइज मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी भी अगर आपने DKMS में रजिस्टर नहीं किया, सो प्लीज गो एंड रजिस्टर योर ID। ओके गाइज, DKMS वो सेंटर है जहाँ पे आप अपने स्टीम सेल्स को किसी को डोनेट कर सकते हो। मैं ओनली 2 मिनट्स लूंगी। ओके, ओनली आई विल टेक 2 मिनट्स। ओके, सो गाइज वो ये एक ऐसा सिस्टम है, एज वी ऑल नो हमारे अंदर ब्लड ग्रुप होते हैं। ओके, सो गाइज जो ब्लड ग्रुप होता है वो ओनली 8 टाइप्स के होते हैं, जो कि इजिली डोनर्स को मिल जाते हैं जिन्हें ब्लड की नीड होती है। लेकिन अगर मैं बात करूँ स्टीम सेल्स की, तो ये उन लोगों के लिए यूज होता है जो कि कैंसर के पेशेंट है, जिन्हें ब्लड कैंसर है। ओके, जो कि बहुत ही गंभीर बीमारी है, एज वी कैन से। ओके, जिन्हें हुआ होगा उन्हें हम बस समझ सकते हैं कि भाई ये कितनी गंभीर बीमारी है। सो उन्हें स्टीम सेल्स की जरूरत पड़ती है उनकी जान बचाने के लिए, और स्टीम सेल्स 20,000 के टाइप्स के होते हैं। ओके, उसके 20,000 टाइप होते हैं, जो कि नॉर्मली अपने फैमिली में तो खैर ढूंढना इम्पॉसिबल है, और अगर अपने से हम ढूंढने निकले ना तो वो भी इम्पॉसिबल है, नहीं मिल पाता गाइस। भगवान की कृपा से किसी को मिल गया ऐसे इम्पॉसिबल है मिलना यार, और फैमिली मेंबर्स में तो गाइस मैच ही नहीं होता बिल्कुल भी। सो वो मैच करने के लिए DKMS का सेंटर खुला हुआ है। ओके, प्लीज गो एंड रजिस्टर एज अ डोनर। आप वहां पे रजिस्टर करो। ओके, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपका कुछ भी ऐसा पैसा खर्च नहीं होगा, बस आपको वहां पे रजिस्टर करना है। ओके, 40 डेज का प्रोसेस होगा। आपको एक किट मिलेगी आफ्टर 1 वीक। उस किट में बस आपको अपना स्क्वैब लेना होगा। ओके, माउथ स्क्वैब वो कैसे लेना है उसमें डिटेलिंग दी होगी, वो लेकर के आपको बस उसमें डाल देना होगा अच्छे से। फिर एक डिलीवरी बॉय आएगा, उसे लेकर जाएगा, एंड उससे फिर आपके मतलब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को पूरा किया जाएगा। एंड ये जो DKMS की जो कंपनी है वो जर्मनी में है। ओके, सो यहाँ से जो आपका जो स्क्रैप का जो टेस्ट है वो आपका डायरेक्टली जर्मनी जाएगा, वहां पे जाकर के चेक होगा, और फिर ये देखा जाएगा कि आपका जो स्टीम सेल है वो कौन से टाइप का है। अगर आप किसी भी डोनर को, लाइक सपोज करो कोई डोनर है, उससे हेल्प की जरूरत है, अगर आपका स्टीम सेल और उसका स्टीम सेल मैच कर गया, देन आपके पास कॉल आएगा कि आप अगर चाहो तो आप इन्हें डोनेट कर सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप डोनेट करो, क्योंकि गाइस ये स्टीम सेल है, ऐसे कोई किडनी या लीवर नहीं है जो कि आप डोनेट करोगे फिर आपका भी नहीं रहेगा। गाइस स्टीम सेल ना 2 वीक्स में बन जाते हैं। ओके, दिस इज जस्ट लाइक वी कैन से प्रोटीन। आप प्रोटीन खाओगे पियोगे, आपकी स्टीम सेल्स बन जाएंगे, और उसी स्टीम सेल्स की ना नीड उन लोगों को होती है जो कि ब्लड कैंसर से अभी रह रहे हैं। ओके, जूझ रहे हैं। गाइस इंडिया की अगर मैं बात करूं तो 1 लाख प्लस पेशेंट है, लेकिन अभी भी डोनेशन के लिए केवल 8 लाख लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। गाइस आप देख सकते हो रेशियो क्या है, 1 लाख में से केवल एक ही लोग का सिलेक्शन हो पाता है कि वो मतलब मैच कर पाता है उनका स्टीम सेल किसी से। अब 1 लाख पेशेंट है इंडिया में, एंड ओनली 8 लाख लोगों ने अप्लाई किया हुआ है एज अ डोनर। आप समझ सकते हो गाइस कितने लोगों को मिल पाया होगा उनका डोनर, आप समझ सकते हो ये। ओके, सो प्लीज गो एंड अप्लाई। ओके, एज अ पीपल, ओके, एज अ जनता की तरफ से ये मैं कहना चाह रही हूँ, प्लीज गो एंड अप्लाई। ओके, ओके, सो गाइस अब शुरुआत होती है इकोनॉमिक्स के टोटल 25 क्वेश्चन की। ओके, सिलेक्टेड बाय मी। ओके, सो GDP stands for Gross Domestic Product. GDP is the total value of all goods and services produced within a country's border in a specific period used to measure economic health. Guys, मैंने GDP और मैंने फुल इकोनॉमिक बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है अपने एक वीडियो में, ट्रिक वाइज। बच्चा एक बार सुना ना उसके दिमाग में बैठ जाएगा। सो प्लीज गो एंड चेक इट आउट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आपने क्या देखा। Which organization publishes the Human Development Index HDI? So UNDP है वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि HDI को पब्लिश करती है। ओके, प्रोड्यूस करती है, पब्लिश करती है। सो UNDP मीन्स यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम रिलीजेज HDI एनुअली टू मेजर अ कंट्रीज डेवलपमेंट ऑन एजुकेशन, इनकम एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ओके, Who is called the father of Indian economics? Guys, father of Indian economics हमारे दादा भाई नारोजी को कहा गया है। ओके, known for his drain of wealth, ये किताब उन्होंने लिखी है। ओके, ये थ्योरी भी है एक।
known for his drain of wealth theory, shown how British rule lead to economic exploitation of India. Okay, the term fiscal deficit refers to government expenditure exceeds income. Okay, fiscal deficit is equals to total expenditure minus total revenue excluding borrowings. Okay गाइज, ये फॉर्मूला याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने ट्रिक वाइज एक्सप्लेन किया है. सो आई रिक्वेस्ट यू गो एंड प्लीज चेक द माय वीडियो. ओके, विच बैंक इज कॉल्ड द बैंकर्स बैंक? सो बैंकर्स का बैंक कहा गया है, बैंकों का बैंक कहते हैं ना, राजा का राजा महाराजा. सो आरबीआई है वो. ओके, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द रेगुलेटर ऑफ ऑल बैंक्स इन इंडिया, प्रोवाइड लोन्स एंड मेंटेन्स अकाउंट्स ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स एंड ऑल. ओके, नीति आयोग रिप्लेस विच इंस्टीट्यूशन? गाइज, ये क्वेश्चन क्या बताऊं मैं. गाइस, नीति आयोग ने 5 ईयर के प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया है. बहुत इजी है यार. फॉर्म्ड इन 2015 बाय पीएम नरेंद्र मोदी, फोकस ऑन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. ओके, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे इसका मेन फोकस है. ऑलराइट, फेडरलिज्म पे. विच इज अ डायरेक्ट टैक्स? गाइस, इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स. ओके, direct tax is levied directly on income of individuals and companies, cannot be transferred to someone else. Okay, repo rate refers to, repo rate means RBI lends to bank. Okay guys, ये फॉर्मूला याद कर लेना. ओके, ये डेफिनेशन छोटी छोटी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए. वैसे मैंने अपने स्टैटिक जीके वाले कोर्स के प्लेलिस्ट में, आप कोर्स के सेक्शन में जाओ, वहां पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगा. प्लेलिस्ट के नीचे नंबर में आओ, यानी सेकंड नंबर प्लेलिस्ट में, जहां पे मैंने स्टैटिक जीके एक्सप्लेन किया है, जहां पर मैंने आरबीआई को फुल डिटेलिंग के साथ एक्सप्लेन किया है. सो प्लीज गो एंड चेक इट आउट. ओके, कोर्स वाले सेक्शन में मिलेगा, मैंने पहले बता दिया. ओके, repo rate refers to RBI lends to banks. Repo repurchase rate is a tool used by RBI to control inflation and liquidity. Okay, inflation deflation क्या होता है वो भी एक्सप्लेन किया है मैंने. ऑलराइट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. जीएसटी का फुल फॉर्म नहीं पता तो गाइज निकलो यहाँ से यार. सॉरी, बट निकल जाओ यार, मत देखो फिर ये वीडियो, ये बेसिक है यार. Introduced in 2017 in India, indirect tax that replaced many central and state taxes. Okay, who present the union budget in India? So finance minister presents the union budgets in India, currently presented by Nirmala Sitharaman as of 2025, usually on 1st February every year. Which sector contributes the highest to GDP in India's GDP? So सर्विस सेक्टर बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है उसका. ओके, सर्विस सेक्टर IT, टूरिज्म, फाइनेंस एक्सेट्रा मेकअप्स अराउंड 50 to 55% ऑफ इंडिया GDP. ओके, पीएम किसान योजना गिव्स हाउ मच फाइनेंशियल सपोर्ट टू फार्मर्स एनुअली? सो 6,000. ओके, पीएम किसान योजना ये जो है ये 6,000 फार्मर्स को देती है एज अ फाइनेंशियल सपोर्ट. ओके, द अमाउंट इज गिवन इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स. ये 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स के थ्रू दिया जाता है, मीन्स 2,000 ईच एनुअली. ओके, ऐसे दिया जाता है. विच ऑफ दीज इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द आरबीआई? सो प्रमोट फॉरेन ट्रेड. फॉरेन ट्रेड इज हैंडल्ड बाय एक्सिम बैंक, EXIM बैंक एंड DGFT. RBI focus on currency, credit and banking. Okay, only. What is inflation? Guys, inflation क्या है? So inflation है increase in prices और deflation होता है decrease in prices. Okay, when general price levels increase steadily over time, it is called inflation. Okay, और जब भी वही price level decrease होता है, so उसे deflation कहते हैं. Alright, लो मैंने यहाँ भी कर दिया यार, एक्सप्लेन कर दिया मैंने यहाँ पर. द मेक इन इंडिया कैंपेन वॉज लॉन्च इन 2014 में मेक इन इंडिया कैंपेन को लॉन्च किया गया. ओके, टू इंक्रीज मैन्युफैक्चरिंग एंड बूस्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया. ओके, व्हाट डज FDI स्टैंड फॉर? गाइस, FDI का फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट बाय अ कंपनी और इंडिविजुअल इन वन कंट्री इनटू बिजनेस इंटरेस्ट इन अनदर कंट्री. ओके, the first 5-year plan in India was launched in 1951 based on Horold-Dormer model. Okay, focus on agriculture and irrigation. Guys, 5-year plan पूरा अच्छे से लर्न कर लेना, मैंने अपने वीडियो में एक्सप्लेन किया है. प्लीज गो एंड चेक इट आउट. ओके, वही सेम स्टैटिक जी का कोर्स वाले सेक्शन में. ओके, which of the following is a public sector bank? SBI. So SBI is a public sector bank. Okay, State Bank of India is the largest public sector bank in India. An
NEFT in banking stands for National Electronic Fund Transfer, electronic mode for transferring fund between banks in India. Okay. Who regulate stock market of India? Okay, stock market को इंडिया में कौन करता है रेगुलेट? सो वो SEBI यानी सेबी करती है. ओके. Securities and Exchange Board of India regulates the monitors stock exchange. Okay. What is this investment, guys? This investment क्या है? So this investment है government sells its share in PSUs. Okay. Done to reduce fiscal deficit and increase efficiency in PSUs. What is the currency of Japan? जापान की करेंसी येन है. ओके, येन, YEN. What is demonetization, guys? Demonetization means withdrawal of currency from circulation. India demonetized 500 to 1000 notes on 8th November 2016 to curb black money and corruption. Okay, which scheme aims at creating employment through self-help groups, SHGs? So Mudra Yojana. Okay. Stand for Micro Units Development and the Refinance Agency supports MSMEs. Okay. When was GST implemented in India? So in 2017 GST implemented in India. Okay. Implemented on 1st July 2017. One nation one tax system, ये इसका स्लोगन है. ओके. और यहाँ पे गाइस हमारी कंप्लीट होती है इकोनॉमिक्स की, कंप्लीट होती है 25 क्वेश्चन. अब बारी है अपने आज के लास्ट टॉपिक है जो कि है करंट अफेयर. एक्सपेक्टेड 25 क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड है आज का गाइस क्वेश्चन. बहुत ही अच्छा कंटेंट आज का मैंने क्रिएट किया है एंड मैं यही कोशिश करूंगी कि मैं रोज ऐसे ही अच्छे कंटेंट आपके लिए लेकर के आऊं ताकि आपके और मेरा दोनों की हेल्प हो सके. ओके. सो मेरी हेल्प ये होगी कि मेरी प्रैक्टिस होगी और आपकी भी हेल्प ये होगी, आपकी भी प्रैक्टिस होगी यार. सो करंट अफेयर 2025 के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आने वाले हैं गारंटेड 100% के साथ इसी से आएंगे क्वेश्चन. अगर नहीं आए तो मेरा नाम बदल देना. विच कंट्री इज सेट टू होस्ट द 2025 G20 समिट? सो ब्राजील. ओके. ब्राजील को सेट किया गया है जो कि 2025 का जो G20 का समिट होने वाला है वो ब्राजील सब कुछ सेटअप करेगा. ओके. आफ्टर इंडिया होस्टेड द 2023 G20. एक और क्वेश्चन बनता है कि इंडिया ने 2023 में G20 को होस्ट किया था. ओके. लेकिन इंडिया के बाद अब ब्राजील को शेड्यूल किया गया है कि 2025 में ब्राजील होस्ट करेगा, कंटिन्यूइंग द G20 प्रेसिडेंसी सीरीज रोटेशन. ओके. What is the name of the upcoming Indian space mission aimed at studying Venus expected around 2025? So शुक्रयान 1. ओके. ये मिशन का नाम है. इसरोज प्लान्ड वेनस मिशन है शुक्रयान फर्स्ट इज एक्सपेक्टेड अराउंड 2025 to study the surface and atmosphere of Venus. Okay. Which of the following schemes is expected to be expanded in 2025 to include gig workers and platform based labor? So E-Shram portal. Okay. Government is planning to widen the E-Shram portal to bring gig workers under social security nets. Okay. Who is likely to be chief guest of India's Republic 2025 on the Republic Day? Okay. So Rishi Sunak. Okay. As India UK is ties strengthened, so Rishi Sunak is widely speculated to be the 2025 Republic Day chief guest. Okay. Which Indian city is all set to host the 2025 World Heritage Convention? So Varanasi. Varanasi's heritage and spiritual make it is a strong candidate for this high profile global cultural event. वाराणसी को चूज किया गया है. ओके. 2025 के वर्ल्ड हेरिटेज साइट के कन्वेंशनल इवेंट के लिए. ओके. जो कि एक हाई प्रोफाइल ग्लोबल कल्चरल इवेंट है. ओके. What is the estimated launch period of India's first human space flight under Gangayaan mission? So mid 2025. Okay. Okay. So who is the expected to be the first Indian origin astronaut to fly into space under Gangayaan? So to be announced. Okay. ऑलराइट गाइज, यहाँ पे गाइज मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूंगी. आई नो अभी भी कुछ क्वेश्चंस रिमेनिंग है जो कि मैं अगले वीडियो में जरूर करूंगी कंप्लीट, क्योंकि वीडियो का साइज बहुत ही लंबा हो चुका है. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. ओके. डू नॉट फॉरगेट टू डू द लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई वीडियो. अगर आप चाहते हो कि इन सारे क्वेश्चंस की PDF आपको मिले सो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जो कि जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. ओके. सो गाइस टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम.